Okay, so my name is Samrat Vesh, and I'm working as a digital forensic analyst in Third Eye Techno Solution. So the topic of today's webinar, okay, so the topic of today's webinar is on digital forensic acquisition, where we will discuss about the live and dead Windows system. Okay, so these are the objectives of today's webinar. Today we will discuss about some basic introduction to the digital forensic, and after that we will discuss about the some basic concept where we discuss about the digital forensic processes like identification, collection, preservations, and after that then we will discuss about the live forensic acquisitions, and then we will discuss about the dead forensic acquisitions. Okay, so the basic introduction of the digital forensic is, as you know, digital forensic is the process where you can identify or preserve or analyze or present your evidence, digital evidences basically, for investigative purposes. Its role basically involved in the investigation of cybercrime, mostly frauds, intellectual property theft, and other digital crimes. And the importance of digital forensic in this field is helps in uncovering crucial evidences such as digital deleted files, internet history, emails, and other digital footprints, which support basically for your legal proceedings. It also helps in understanding the sequence of events in digital incidents. सो ये भी हेल्प करते हैं बेसिकली इसका इम्पोर्टेंस इस तरीके से है कि डिजिटल इंसिडेंट किस तरीके से हुआ है और ये सीक्वेंसिंग में आपको हेल्प करते हैं लाइक कैसे किस तरीके से कोई इवेंट हैपन हुआ है तो ऑल्सो हैव some legal implications where with adherence to the legal standard evidence integrity जहाँ पे हमें एविडेंस की इंटेग्रिटी मेंटेन करके रखनी होती है जहाँ पे हमें टैम्परिंग नहीं होने देती अपनी एविडेंसेस को एंड वी ऑल्सो मेंटेन द चेन ऑफ कस्टडी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ लाइक इन डिजिटल फोरेंसिक we also like understand the legal framework and the procedure for the evidence collection, which is also very essential to ensure the admissibility of evidence in court. Okay, so digital forensic plays an important role to identify or collect or examine and analyze the data while preserving the integrity of the information and also maintain a strict chain of custody for the data. So the investigative process for the digital forensic science is first with identification, where we identify this our digital evidences like SSDs, hard drives, mobile, these then we proceed with the collection of the evidences, digital evidences. Then we preserve our collected digital evidences. Then we examine our digital evidences. Then analysis of that. Then preservation. Okay, so the first is identification of our digital evidences. So the first stage in digital forensic process is the identification of potential digital evidences. It is very important to determine where the data is storing or where the data is located so that we can identify our digital evidences. It also like identifying the type of electronic digital devices and understanding its structure of how the data is stored is also important. Where you like किस तरीके से आपको evidences मिल सकते हैं like pen drives, laptops, SSDs, desktops, external drives, कुछ SATA drives, hard drives, then NVMe's इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा हमारे डिजिटल एविडेंस है जो हमें क्राइम सीन पे मिल रहा है. Okay. Then collection of digital evidences जहाँ पे आप Okay, so the first is live forensics. Live forensic means is the like it involves the collecting of volatile data from a running Windows system. कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसे क्राइम्स मिल सकते हैं जहाँ पे विंडोज लाइक आपको कोई विंडोज का सिस्टम मिल रहा है और वो लाइव कंडीशन में मींस कि वो ऑन एंड अनलॉक कंडीशंस में है. तो ऐसे सिचुएशंस में हमारा ये प्रोसेस होता है कि वोलेटाइल डेटा को जो रनिंग विंडोज सिस्टम उसमें से हम कलेक्ट करें. Volatile data includes basically extracting the information of active processes, network connections, memory content जो memory में इस समय loaded है, and also the system logs.
It involves tool and techniques like specialized tool we will use, like if FTK Imager, OS forensic, magnet response, and the technique which is such as memory forensic and volatile data capture are employed. The best practice, forensic practices for the live forensic is the documentation of the system state. Means कि हमारा system कौन से state पे, on condition पे है, unlock condition पे है, कि लॉक कंडीशन पे है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी भी हमारी मेंटेन रहे, और प्रॉपर हमारे पास परमिशन होनी चाहिए प्रोसीड करने के लिए, कि हमें अगर ऐसा कोई भी कंडीशन में क्राइम सीन मिल रहा है तो हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है, हमें कोई पेन ड्राइव कनेक्ट करनी है अगर सिस्टम से, तो हमें प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए। उसके साथ साथ वी ऑल्सो हैव टू मेंटेन द चेन ऑफ कस्टडी मेंटेनेंस एंड ऑल्सो द रियल टाइम एविडेंस प्रिजर्वेशन आर की कंसिडरेशन। हमारा सबसे मेन होता है कि हम सारी की जितना भी हम वहाँ पे क्राइम सीन पे कर रहे हैं उसकी प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करके रखें। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in live forensic. When you are investigating as such incident, like where you encounter such system, like system on condition, so there's a two condition, आपको system on condition में दो तरीके से आपको condition मिल सकते हैं। First is system log condition अगर मिलता है तो user has, अगर यूजर ने कोई सिस्टम पे पासवर्ड लगा रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर लगा रखा है एंड एक्यूज वहां पे प्रेजेंस है, तो ट्राई टू गेन द एक्सेस टू द क्रेडेंशियल्स। अगर आपको किसी तरीके से क्रेडेंशियल्स मिलते हैं, इफ एक्सेस इज नॉट गेन्ड, देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द सिस्टम ऑफ कंडीशन एक्विजिशन मेथड। कि अगर आपको कोई सिस्टम लॉक कंडीशन में मिलता है एंड वहां लाइक ऑन कंडीशन में भी है और सिस्टम लॉक कंडीशन पे भी है, तो सबसे पहले चीज है कि आप कोशिश करो कि आपको पासवर्ड मिल पाए। इन केस अगर आपको पासवर्ड नहीं मिलता है, तो अगर एक्यूज्ड वहां पे प्रेजेंट है तो आप ट्राई करिए ताकि आपको क्रेडेंशियल्स मिल सके सिस्टम का। और अगर नहीं मिलता है देन मूव फॉरवर्ड विद द सिस्टम ऑफ कंडीशन एक्विजिशन मेथड, जो कि अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमें, अगर लॉक कंडीशन में हमारा सिस्टम है और ऑन भी है, तो अगर हमें पासवर्ड नहीं है तो हम किस तरीके से आगे फर्दर प्रोसीड करें। उसके अलावा अगर हमें किसी तरीके से एक्सेस मिल जाता है क्रेडेंशियल्स का, then access is gained, then try to unlock the system and remove the password। जैसे ही हमें पासवर्ड मिलता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि उसका पासवर्ड रिमूव करना है, एंड आफ्टर अनलॉकिंग द सिस्टम यू हैव टू कलेक्ट ऑल द वोलेटाइल डेटा। बेसिकली वोलेटाइल डेटा कलेक्शन इज द प्राइमरी कलेक्शन कंसर्न इन दैट सिचुएशन। लाइक हम सबसे पहले कैप्चर करना है हमें उसके रैम को, उस टाइम पे जो हमारे प्रोसेसेस रन हो रहे हो, नेटवर्क लॉग्स, कनेक्शंस, प्रोसेसेस, रजिस्ट्री फाइल्स, ये सारे इन्फॉर्मेशन उसी टाइम पे हमें कैप्चर करना बहुत ही हमारे लिए कंसर्न का होता है। आप टूल यूज कर सकते हो लाइक मैग्नेट रैम कैप्चर, रैम को कलेक्ट करने के लिए, डंप इट में यूज कर सकते हो आप रैम को कलेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ एफटीके इमेजर से भी आप रैम को कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द, आफ्टर अभी इस पे आता हूं, अगर हमें सिस्टम अनलॉक कंडीशन पे मिलता है देन हमें इसी वे में प्रोसीड करना है आगे, कि जहां पे हमें हमें सिस्टम ऑन कंडीशन में मिला है और अनलॉक कंडीशन में मिला है, देन सबसे पहला है कि हमें उसके वोलेटाइल डेटा को कलेक्ट करना है। वैसे ही पहले हम रैम कैप्चर का टूल यूज करेंगे, उसके रैम को कैप्चर करेंगे, फिर साथ ही साथ डिपेंडिंग अपॉन द केस रिक्वायरमेंट ट्राइजिंग शुड बी डन। लाइक अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऐसे बहुत है, लाइक साइबर कैफे हो गया या कोई कॉल सेंटर हो गया, जहाँ पे हमारे पास सिस्टम एज सच कहीं पे भी आपकी रेट पड़ रही है, ठीक है, कहीं आप रेट पे जा रहे हो, किसी कंडीशन पे इन्वेस्टिगेशन पे जा रहे हो, अगर जहाँ पे ऐसे बहुत सारे मल्टीपल वॉल्यूम पे सिस्टम्स है, तो वहां पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ट्राइजिंग का मतलब है कि किस तरीके से हम अपने उस सिनारियो को और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मैंने कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है केस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हम उस सिचुएशंस को नैरो डाउन करें कि हमें क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा क्या रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसके लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द ट्राइजिंग शुड बी डन, हम ट्राइजिंग थोड़ा बाद में भी डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ट्राइजिंग जो टूल यूज होते हैं आप यूज कर सकते हो ओएस फोरेंसिक्स, ये बेसिकली आपका कमर्शियल टूल भी है, फ्री भी यूज कर सकते हो, 30 डेज का रहता है। ठीक है, उसको भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा मैग्नेट रिस्पॉन्स, ये आपका फ्री है, आप मैग्नेट के भी मैं पोर्टल पे दिखा दूंगा किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। उसके अलावा आपका दो और फ्री यूटिलिटी है, विन ऑडिट और निरसॉफ्ट, आप इसका यूज करके भी ट्राइजिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जहां पे आपका केस रिक्वायरमेंट लाइक मल्टीपल अमाउंट ऑफ सिस्टम्स है, या आपका सिनारियो काफी बड़ा है कि जहां पे आपको सिर्फ कुछ ही डेटा आपको कलेक्ट करना है अपने केस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला सिस्टम ऑन कंडीशन, जहां पे हमने ये डिस्कस किया कि सिस्टम लॉक कंडीशन में हमें कैसे प्रोसीड करना है, और जब अगर हमें कोई ऐसा सिस्टम अनलॉक कंडीशन में मिल रहा है देन हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है उस सिनारियो में।
ओके, सो सिस्टम ऑन कंडीशन में भी दो सिनारियो आते हैं। पहला हम डिस्कस करते हैं कि हमें अनलॉक सिस्टम मिल रहा है विद इंक्रिप्टेड ड्राइव्स। लाइक वहां पे हार्डवेयर इंक्रिप्शन है और सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन है। तो जो लाइक हार्डवेयर इंक्रिप्शन होता है, दिस इंक्रिप्शन बेसिकली यूजेस अ डिवाइस विद अ प्रोसेसर डिजाइन स्पेसिफिकली टू ऑथेंटिकेट यूजर्स एंड इंक्रिप्ट डेटा। जहां पे लाइक हार्डवेयर यूटिलिटीज को यूज करके किया जा रहा है आपके ड्राइव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंक्रिप्ट करने के लिए, और ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को ही इसका एक्सेस होता है। सो इट विल रिमेन इन अ प्लेस नो मैटर व्हाट हैपेंस टू द कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज हार्डवेयर इंक्रिप्शन एग्जिस्ट आउटसाइड द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मीन्स कि अगर कोई हार्डवेयर इंक्रिप्शन लगा हुआ है हमारे विंडोज सिस्टम से, इसका सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन से कुछ लेना देना नहीं है। हार्डवेयर इंक्रिप्शन से आपके हार्डवेयर लाइक अलग से एक टीपीएम, लाइक टीपीएम जो हमारा होता है ट्रस्टेड मॉड्यूल प्लेटफॉर्म, वो उसके हार्डवेयर के बेस में रहता है, ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर लेवल एन्क्रिप्शन रेंडर्स द ड्राइव यूजलेस वंस रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। कभी कभी होता है कि हमें विंडोज के ऐसे सिस्टम मिल रहे हैं जहां पे हमारा टीपीएम बेस्ड सिस्टम है, लाइक विंडोज 11 जो हमारे सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें ऑलरेडी टीपीएम बेस्ड इनेबल होता है। तो अगर ऐसे कोई आपको सिस्टम मिलता है, तो अगर आप उसमें से ड्राइव निकालते हो, लाइक अगर डिटैचेबल है, और अगर आप डिटैच उस पर्टिकुलर ड्राइव को डिटैच करके उसकी इमेज बनाएंगे, देन उसका कोई भी यूज नहीं है, यूजलेस है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्रिप्टेड ही रहेगी। तो आपको अगर ऐसा कोई सिस्टम मिल रहा है अनलॉक पे और वहां पे डिवाइस इंक्रिप्शन लगा हुआ है, बेसिकली हार्ड ड्राइव हार्डवेयर इंक्रिप्शन, देन आपको उसी सिस्टम पे ही आपको इमेज बनानी है। लाइक इन सच सिनेरियो इट इज एडवाइज नॉट टू रिमूव द ड्राइव एंड ट्राई टू इमेज द स्टोरेज मीडिया यूजिंग द सोर्स सिस्टम इटसेल्फ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। हाँ, अगर सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन मिलता है, सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन बेस्ड refers to the program that uses a computer processing power to encrypt data, ठीक है। This type of encryption relies on password as an encryption key to authenticate user, ठीक है। In condition of software level encryption, memory forensic plays a major role as it can help you gain access to the key and password. इन केस अगर आपको कोई ऐसा बिट लॉक कर लाइक कोई सिस्टम मिलता है एंड वो अनलॉक कंडीशन है, सबसे पहली बात कि सिस्टम ऑन कंडीशन में है और अनलॉक कंडीशन में है, और उस पर अगर बिट लॉक कोई इंक्रिप्शन लगा हुआ है एंड उस टाइम पे वो ड्राइव आपकी बिट लॉक नहीं है, मतलब बिट लॉकर तो लगा हुआ है बट वो अनलॉक कंडीशन पड़ी हुई है, तो आप रैम से भी उसकी की को कलेक्ट कर सकते हो। आपकी की रैम पे भी प्रेजेंट हो सकती है। साथ ही साथ आपकी की माइक्रोसॉफ्ट के आउटलुक के अकाउंट के साथ, अगर आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, आउटलुक कॉन्फ़िगर कर रखा है अपने सिस्टम पे, तो वहां पे भी कई बार होता है कि यूजर्स अपने स्टोर करते हैं। साथ ही साथ आपके सिस्टम पे भी हो सकता है कि यूजर ने अपने सिस्टम पे ही की रखी हो। तो आप रैम से भी, लाइक मैंने जैसे बताया कि मेमोरी फोरेंसिक यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है, तो वहां पे आप उस सिस्टम को भी एक्वायर कर सकते हो। After unlocking the drive using the key password, one can move forward with the imaging. Like अगर एक आपको कोई ऐसा सिस्टम मिलता है या बिटलॉक लगा हुआ है और अगर आपके पास कोई पासवर्ड है, तो प्लीज आप पासवर्ड से अगर आपके पास पासवर्ड मिल जाता है तो बिटलॉक को अनलॉक कर लिए और उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हो इमेजिंग के थ्रू। तो ये हमारा था सिस्टम ऑन कंडीशन में, वेयर वी डिस्कस अबाउट द अनलॉक सिस्टम विद इनक्रिप्टेड ड्राइव्स। ओके, सो अगर आपको कोई ऐसा सिस्टम मिलता है लाइक लॉक सिस्टम विद इंक्रिप्टेड ड्राइव्स, बट लॉक सिस्टम पे हमें कैसे पता होगा कि वो हमारी ड्राइव इंक्रिप्टेड है या नहीं है? तो इन द बोथ सिनेरियो द इन्वेस्टिगेटर हैव टू मूव विद द सिस्टम ऑन ऑफ कंडीशन एक्विजिशन मेथड, कि जहां पे आपको लॉक कंडीशन में है सिस्टम, और लाइक मोस्ट प्रोबेबली अगर हम ये मान के चले कि आज का सिस्टम जितने भी आ रहे हैं इंक्रिप्टेड ड्राइव्स के साथ आ रहे हैं, हो सकता है कि यूजर ने बिट लॉकर इंक्रिप्शन लगा रखा हो या डिवाइस इंक्रिप्शन लगा रखा हो, ठीक है। तो या फिर ये भी हो सकता है कि कोई भी हार्डवेयर इंक्रिप्शन या सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन नहीं लगा हुआ है, सिर्फ लॉक कंडीशन में, तो आप उस लाइक आपको सिस्टम ऑफ कंडीशन के एक्विजिशन मेथड की तरफ प्रोसीड करना होगा। इन दिस केस वी कैन ओनली चेक वेदर द ड्राइव्स आर इंक्रिप्टेड और नॉट बाय यूजिंग सिस्टम ऑफ कंडीशन एक्विजिशन मेथड, ठीक है। सो अगर इज देयर एनी लाइक हार्डवेयर इंक्रिप्शन और सॉफ्टवेयर encryption is present, then the imaging or recovery of data from such drives is not possible. अगर कोई भी ऐसा है जहां पे आप चेक करते हो ऑफ कंडीशन मेथड का यूज करते हो एक्विजिशन मेथड का, एंड स्टिल अगर उस पे कोई लॉक लगा हुआ है, बिट लॉकर लगा हुआ है, देन इमेजिंग करना उस पर्टिकुलर ड्राइव का, लाइक इमेजिंग करने के बाद भी आपको ड्राइव इंक्रिप्ट का इमेज भी आपको इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही मिलेगा। ओके, सो सिस्टम ऑफ कंडीशन में देयर इज टू सिनेरियो।
ठीक है, एक सेकंड, एक चीज रहेगी आपकी। ठीक है, सिस्टम ऑन कंडीशन में भी आपके दो सिनारियोज होते हैं, एक और जो लाइक छोटे होते हैं, लाइक इन द डिटैचबल, जहां पे आपके कुछ ऐसे सिनारियोज हो सकते हैं सिस्टम ऑन कंडीशन में भी, कि अगर आपको अनलॉक कंडीशन में सिस्टम मिल रहा है, बट देयर इज कंडीशन कि आप सिस्टम से ड्राइव्स डिटैच नहीं कर सकते। अगर डिटैच नहीं कर सकते तो हमें वहीं पर प्रोसीड करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि क्राइम सीन कुछ ऐसे मिल जाएंगे जहां पे आपको प्रीमाइस से ड्राइव्स को बाहर ले जाना भी अलाउ नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा, आपके पास सिर्फ सॉफ्टवेयर इमेजिंग टूल्स ही है लाइक एफटीके इमेजर, तो आपको उसी सिस्टम पे इमेजिंग करनी होगी विद आपको प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करने के साथ। जो भी आप करोगे आपको प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी में अपने मेंटेन करके रखना है। अगर डिटैचबल नहीं है और डिटैचबल है तो आप डिटैच करके सीधा कोई भी सॉफ्टवेयर इमेजिंग टूल यूज करके या फिर डिस्क डुप्लीकेटर टूल का यूज करके उसकी इमेजिंग कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग लाइक सिस्टम ऑफ कंडीशन। कि सिस्टम ऑफ कंडीशन में क्या सिनारियोज होते हैं। सिस्टम ऑफ कंडीशन में दो सिनारियोज है, वेयर यू कैन लाइक नो डिटैचबल स्टोरेज, जहां पे आपको स्टोरेज डिटैचबल नहीं है, या फिर इफ कि स्टोरेज मीडिया जो लगा हुआ है, इसमें ड्राइव्स लगी हुई है हमारी साटा ड्राइव्स, एनवीएमई, या कोई पेन ड्राइव एक्सटर्नल स्टोरेज भी लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे वो डिटैचबल है। और सिस्टम ऑफ कंडीशन में तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिस्टम ऑफ कंडीशन। नो डिटैचबल स्टोरेज, जहां पे हम कोई भी ड्राइव अपनी डिटैच नहीं कर सकते, देन उस कंडीशन में हम बूटेबल का यूज करेंगे। एक बूटेबल ओएस क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलरली सस्पेक्टेड सिस्टम को उससे बूट करेंगे। लाइक फ्री टूल्स आते हैं, लाइक पैलाडिन हो गया, केन हो गया। अगर हम बात करें कमर्शियल टूल की, तो आपका डिजिटल कलेक्टर हो गया। ठीक है, तो हम उधर उस पर्टिकुलरली पैलेटिन का और केन का बूटमेल क्रिएट करके सिस्टम को बूट करेंगे। बूट करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि इंक्रिप्शन लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है वॉल्यूम से। जो हमारे सिस्टम के वॉल्यूम ड्राइव से उस पर कोई इंक्रिप्शन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ये हम चेक करेंगे। ट्राई करेंगे उन वॉल्यूम्स को माउंट करने की, और साथ ही साथ हमें ये इंफॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं, लाइक जब हम बूट करेंगे OS किसी एक्सटर्नल बूटेबल ओएस का, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा उसका फाइल सिस्टम चेक शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि अगर कुछ बिट लॉगर इंक्रिप्शन ऐसा लगा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको वहां पे कोई भी फाइल सिस्टम आपको शो नहीं कर रहा है। अगर वो आपका वॉल्यूम माउंटेबल है, माउंट हो सकता है, देन वी प्रोसीड कि हम उसकी इमेजिंग परफॉर्म करेंगे। और फोरेंसिक इमेजिंग परफॉर्म करने के बाद हम एक बार इंश्योर भी करेंगे कि जो हमने इमेज फाइल बनाई है वो वर्किंग कंडीशन में है नहीं। तो प्रॉपर उसको हम माउंट करने के बाद उसका ट्री स्ट्रक्चर भी देखेंगे एविडेंस ट्री में, कि उसमें कौन कौन से पार्टीशंस है, या हमने कोई एक पर्टिकुलर अगर एक कोई सिलेक्टिव पार्टीशन की बनाई है तो उसमें हमारा सारा डेटा विजिबल है या नहीं है, ये भी हम इंश्योर करेंगे। तो प्लीज कभी अगर आप ऐसे सिनारियो पे है जहां पे क्राइम सीन प्रेजेंट है, तो आप पहले बार चेक भी कर ले कि अगर आपने सिस्टम ऑफ कंडीशन में पैलेडिन या केन से बूट किया है, तो अगर आपने इमेजिंग बनाई है, इमेज फाइल बनाई है, तो आप इंश्योर कर लीजिए कि आपकी जो इमेज बनी है वो माउंटेबल है नहीं है, डेटा शो कर रहा है नहीं कर रहा। सो दैट कि अगर आप उस प्रेमाइज से बाहर आ रहे हो, अगर हमने इंश्योर नहीं किया, देन सारा आपका रिसोर्सेज सब कुछ वेस्ट जाएगा। तो ये मेक श्योर करिए कि आपने जो इमेज बनाई वो आपकी वर्किंग कंडीशन में हो। देन बात आती है सिस्टम ऑफ कंडीशन, जहां पे आपका स्टोरेज मीडिया डिटैचेबल है। तो आपको क्या करना है, सीधा उस ड्राइव को निकालना है, सीधा राइट ब्लॉकर से। आपने किसी भी आपका जो आप सिस्टम लेके जाते हो या फिर अपने लैब पे आके उस पर्टिकुलर ड्राइव को राइट ब्लॉकर से, ये ध्यान रखिएगा कि आपको राइट ब्लॉकर से कनेक्ट करना है। या अगर आप डिस्क डुप्लीकेटर यूज कर रहे हो तो आपको सोर्स साइड से सिस्टम को उस पर्टिकुलर ड्राइव को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आप इंटेग्रिटी भी मेंटेन रखिएगा, कोई टैंपरिंग मत होने दीजिएगा। उसके बाद हम इमेजिंग परफॉर्म करेंगे ऑन एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया, साथ ही साथ उसको वेरीफाई करेंगे विद हैशिंग, कि हमारा जो प्रॉपर हमने जब कैप्चर कर रहे थे दोनों लाइक वेरिफिकेशन के बाद हमारा हैश वैल्यू सेम है या नहीं है। उसके बाद भी इमेजिंग करने के बाद भी हम ये इंश्योर करेंगे कि जो हमने इमेज फाइल बनाई है वो हमारी वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। ये होता है आपका सिस्टम ऑफ कंडीशन सिनेरियो। अब बात आ जाती है कि अगर आपको जहां पे सिस्टम ऑन कंडीशन में मिला और या लाइक लॉक कंडीशन में भी मिला, तो आपका अगर आपके पास डिटेंशियल मिल गए हैं, या फिर आपका कोई सिस्टम ऑन कंडीशन में और अनलॉक कंडीशन में, तो जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा मेन कंसर्न होता है रैम कैप्चर। सो मेमोरी एक्विजिशन बेसिकली है क्या। ठीक है, तो बेसिकली मेमोरी एक्विजिशन अलाउज investigators
और लाइक जो हम यूजर्स हैं, टू आइडेंटिफाई द अनऑथराइज्ड एंड अनोमलस एक्टिविटी ऑन द टारगेट सिस्टम। हम रैम के कैप्चर के थ्रू हम ये एनालाइज कर सकते हैं उसको कि देयर इज देयर एनी काइंड ऑफ एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस एक्टिविटी और anomalous activity. This type of analysis is achieved by tools like ability to capture the current state of the system memory as a snapshot file like memory dump. इस कंडीशन में हम मेमोरी, जैसे मैंने बताया कि मेमोरी टूल का यूज करते हैं जो रैम को कैप्चर कर सके, उसका स्नैपशॉट ले सके। The switch on state of the system allows investigator to acquire वॉलेटाइल डेटा। लाइक अगर सिस्टम ऑन कंडीशन में है, अनलॉक कंडीशन में, तो ही आप वॉलेटाइल डेटा कलेक्ट कर सकते हो। आपका अनलॉक कंडीशन में होना चाहिए। अगर पासवर्ड लगा है, यू हैव टू पुट सम पासवर्ड, देन तभी आप वॉलेटाइल डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, जो कि लाइक विच विल यूजुअली बी अनअवेलेबल इन ऑफ स्टेट और इफ द पावर गोज ऑफ। तो अगर आप कोई ऐसा सिनारियो पे है जहां पे आपको ऐसा सिस्टम मिलता है ऑन एंड लॉक कंडीशन में, तो आपको सिस्टम को बंद नहीं करना या पावर सोर्स को नहीं डिस्कनेक्ट करना। आपका सबसे पहला मेन कंसर्न है कि आपको वॉलेटाइल डेटा को कलेक्ट करना है। जहां पे आप फ्री टूल यूज कर सकते हो, लाइक टूल्स मैग्नेट रैम कैप्चर, मैग्नेट डंपिट, स्टेरो एफटीके मेजर या बेलकस ऑफ रैम कैप्चर, या आप कोई भी रैम कैप्चर यूटिलिटी यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद जो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हमारे आर्टिफैक्ट्स होते हैं मेमोरी, लाइक रैम डेटा कलेक्ट करने के बाद। इसमें आपको रनिंग प्रोसेसेस, प्रोग्राम लाइक रनिंग प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। क्लिप उस टाइम पे अगर यूजर ने अपना क्लिपबोर्ड कंटेंट यहाँ पे इनेबल कर रखा है, ठीक है, देन आप जो भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो वो आपके क्लिप बोर्ड डेटा में प्रेजेंट रहता है। तो वो इंफॉर्मेशन भी आप हो सकता है कि यूजर ने उस टाइम पे अनलॉक करने के लिए कोई पासवर्ड या फिर कोई रिकवरी की डाल रखी है और अनलॉक करने के लिए उसको यूज कर रहा है, तो आप वो भी कलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यूजर ने क्या कौन कौन से नेटवर्क से कनेक्ट हो रखा था, लाइक कोई नेटवर्क की एनोमलस अनऑथराइज्ड एक्टिविटी या हार्मलेस एक्टिविटी कोई सिस्टम की हुई हो, ठीक है, तो आप नेटवर्क कनेक्शन कर सकते हो। मालवेयर एनालिसिस भी कर सकते हो रैम कैप्चर के थ्रू। मालवेयर भी एनालाइज कर सकते हो, इस लाइक कोई मालवेयर प्रेजेंट हो हमारे रैम पे, कि सबसे पहले हमारे सिस्टम पे आ रहा है तो हमारे रैम पे लोड होगा, रैम पे लोड होने के बाद देन हमारे सिस्टम पे वो इनपुट होगा, तो आप वो भी एनालाइज कर सकते हो। साथ ही साथ आप विंडोज के रजिस्ट्री हाइट्स भी कलेक्ट कर सकते हो, उस टाइम पे रजिस्ट्रीज जो हमारे मेन रजिस्ट्री फाइल्स में लोड होने के लिए थी, तो वो इंफॉर्मेशन भी उठा सकते हो आप। साथ ही साथ रैम कैप्चर के थ्रू डिक्रिप्टेड फाइल्स या कीज भी उठा सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कौन कौन से यूजर नेम पासवर्ड्स, वो भी यूजर रिलेटेड ब्राउजिंग हिस्ट्री, और जैसे मैंने बताया कि मालवेयर और रिलेटेड इंस्ट्रूजन, रिसेंट एग्जीक्यूटेड कमांड्स, इंजेक्टेड कोड फ्रैगमेंट, आप ये इंफॉर्मेशन या एनी मोर मेमोरी डेटा अवेलेबल बिफोर शटडाउन, आप ये सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यूजर ने, एक इन्वेस्टिगेटर यूजर जो उसने कई सारे प्रोसेसेस रन कर रखे हैं, प्रोग्राम रन हो रखे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको रैम से मिल जाएगी। तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो क्राइम सीन है जहां पे आप मालवेयर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, देन वहां पे आपका रैम डेटा कलेक्शन करना भी इंपॉर्टेंट है। या फिर ऑन एनालॉग कंडीशन में जहां पे मिल रहा है सिस्टम, तो वहां पे यूजर ने क्या क्या एक्टिविटी कर रखी थी उस टाइम पे, आप रैम से भी डेटा वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो। ओके, जैसे कि मैंने ट्रैजिंग पहले डिस्कस किया था कि जहां पे हमारा ऐसा केस सिनारियो है या क्राइम सीन है जहां पे, लाइक मैंने एग्जांपल दिया था, कोई साइबर कैफे का हो गया या कॉल सेंटर हो गया, जहां पे नंबर ऑफ सिस्टम्स या नंबर ऑफ एविडेंसेस का अमाउंट काफी बड़ा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन, प्रायोरिटाइजिंग द एविडेंस इज पैरामाउंट टू योर सक्सेस एज एन इन्वेस्टिगेटर। लाइक हमारा भी मेन कंसर्न होना चाहिए कि हमें एक्चुअल में उस टाइम पे कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है इतने सारे सिस्टम्स में। तो ये फिल्टरिंग व्हाट इज एंड व्हाट इज क्रिटिकल टू द केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हर बार कि हम सारे के सारे इमेजिंग करें या सारा सारा डेटा कलेक्ट करें। तो उस टाइम पे जो प्रायोरिटाइज करना एविडेंसेस को, वो हमारा कहलाता है ट्राइजिंग। तो a process that takes place prior to the standard forensic methodology is called digital triage. It can provide valuable intelligence without subjecting digital evidences
टू अ फुल एग्जामिनेशन विच कैन गाइड द सर्च एंड सीजर, कि आपको एक्चुअल में कलेक्ट क्या करना है, कौन सा आपका इंपॉर्टेंट। लाइक अगर मुझे लग रहा है कि सिर्फ मुझे यूजर की एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन ही निकालनी इतने सारे सिस्टम्स में, तो मुझे सिर्फ ओएस ड्राइव्स में से सिर्फ अपना यूजर की एक्टिविटी को ही रन करना है, ताकि मैं उसको कैप्चर कर सकूं। या फिर यूजर ने कौन कौन सी एक्टिविटी की थी, या फिर कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल थे सिस्टम में, या फिर कोई मालवेयर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन, जहां पे हमें ये देखना है कि हमारा मेन फोकस की कि प्रोग्राम हमारे सिस्टम में कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल हुए थे, या फिर हमारे रैम में कौन कौन से ऐसे लाइक डीएलएल लोड हुए थे। तो वहां पे हमारा मेन कंसर्न सिर्फ है रैम कैप्चर करना और साथ ही साथ रजिस्ट्री फाइल्स को उठाना। तो हमें जरूरत नहीं है कि हम सारा का सारा एविडेंस को उठाए उस टाइम पे, या 25 सिस्टम है या 50 सिस्टम है वहां पे हम सारा डेटा कलेक्ट करें। हमारा मेन कंसर्न है कि हम जो उस टाइम पे प्रायोरिटाइज कर सके अपने एविडेंस को, और उसी टाइम पे हम डेटा को कलेक्ट कर सके। तो ट्रैजिंग के लिए आप कुछ यूटिलिटीज है आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप ओएस फोरेंसिक भी यूज कर सकते हो। देयर इज अ यूटिलिटी कॉल्ड ऑटो ट्राइजिंग, आप यहाँ पे ऑटो ट्राइजिंग यूज कर सकते हो। अभी आगे डिस्कस करूंगा मैं कि ओएस फोरेंसिक में ऑटो ट्राइज करके हम क्या क्या इंफॉर्मेशन रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज निरसॉफ्ट, आप निरसॉफ्ट से भी कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि आपके सिस्टम में कौन कौन से पेन ड्राइव्स कनेक्ट हुई थी, या फिर इतने सारे सिस्टम्स में से मुझे ये इंफॉर्मेशन लगानी है कि इस पर्टिकुलर डेट से लेके और इस पर्टिकुलर डेट तक कितनी सिस्टम में ड्राइव्स कनेक्ट हुई थी, या एक्सटर्नल कोई पेन ड्राइव्स या कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव कनेक्ट हुई थी। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ आप ये निरसॉफ्ट यूटिलिटी यूज करके, या फिर आप विन ऑडिट का भी यूज करके ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। देयर इज अनदर टूल मैरिड रिस्पॉन्स, उसका भी यूज करके आप ट्राइजिंग परफॉर्म कर सकते हैं। वॉलेटाइल जो डेटा है उसको कलेक्ट कर सकते हैं, और वो डेटा जो आपके एविडेंसेस या केस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज बेसिस पे आप उन्हें भी कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है ट्राइजिंग थ्रू ओएस फोरेंसिक। सो ये कॉमर्शियल टूल है, ठीक है। ट्राइजिंग करते टाइम पे अगर ओएस फोरेंसिक से आप ट्राइज कर रहे हो, कॉमर्शियल क्यों है, क्योंकि अगर आप किसी सस्पेक्टेड सिस्टम पे लाइक ऑन एंड अनलॉक कंडीशन सिस्टम पे एज सच कोई यूटिलिटी रन कर रहे हो, तो आपको कोई भी यूटिलिटी उस सस्पेक्टेड सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं करनी है, ठीक है। आपको एक्सटर्नल मीडिया का यूज करना है। उस एक्सटर्नल मीडिया में आपको एक पोर्टेबल वर्जन लेके जाना है, और जो भी लाइक अगर आप इमेजिन कर रहे हो, या फिर आप कोई यूटिलिटी रन विन ऑडिट रन कर रहे हो, या निट्स ऑफ यूटिलिटी रन कर रहे हो, तो वो आपको वहां पे आपको किसी एक्सटर्नल मीडिया पे इंस्टॉल करके ही रन करना है। अगर मैं ट्राइजिंग ओएस फोरेंसिक का यूज कर रहा हूँ, देन आप सब कुछ आप अपना एक्सटर्नल मीडिया पे स्टोर करके रन करोगे, सिस्टम पे सस्पेक्टिव सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं करोगे। एंड जिस भी टाइम पे आप रन कर रहे हो, तो वो टाइम भी आप अपने चेन ऑफ कस्टडी में ये इंक्लूड करोगे रन करते टाइम पे। ये आपको बहुत लाइक कौन सी ड्राइव यूज कर रहे हो, उस ड्राइव का मॉडल डिटेल सब कुछ इंफॉर्मेशन, और साथ ही साथ किस टाइम पे आपने परफॉर्म किया था, कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ था, ये इंफॉर्मेशन भी आपको चेन ऑफ कस्टडी में अपनी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है कि कमर्शियल क्यों। इसका पोर्टेबल क्रिएट करने के लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस लगेगा। अगर आप फ्री यूटिलिटीज यूज भी कर रहे हो, तो वहां पे आप इसका पोर्टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। आपको फिर अगर फ्री यूटिलिटी आप यूज करोगे तो आपको सिस्टम पे इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही परफॉर्म कर सकते हो। देन अगर आपको अगर इस यूटिलिटी का यूज करना है, तो ये आपका कमर्शियल है, तो आपको परचेज करना होगा। उसके अलावा ट्राइजिंग से लाइव एक्विजिशन के थ्रू, अच्छा, ट्राइजिंग करने के लिए आपका सिस्टम ऑन एंड अनलॉक कंडीशन में होना ही चाहिए, तभी आप कोई प्रोग्राम रन कर सकते हो सिस्टम पे, ठीक है। उसके वहां पे आप क्या कर सकते हो, प्रोसेस लिस्ट निकाल सकते हो कि सिस्टम पे कौन कौन से प्रोसेस चल रही थी, ये इंफॉर्मेशन। मेमोरी रिलेटेड सारा डंप निकाल सकते हो, उस टाइम पे मेमोरी डंप कैप्चर कर सकते हो। यूजर ने क्या क्या एक्टिविटी कर रखी थी, ये इंफॉर्मेशन भी। पासवर्ड एंड लॉगिन्स भी, सारी की सारी आप यहाँ पे फाइल लिस्ट भी निकाल सकते हो। लाइक कोई ड्राइव्स, लाइक आपको कोई सिलेक्टेड वॉल्यूम है कि आपको सारे ड्राइव्स का नहीं चाहिए, लाइक सीड आपको आपके सिस्टम में कोई दो ड्राइव कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर कोई एक पर्टिकुलर ड्राइव में आपके कई सारे वॉल्यूम क्रिएट हो रखे हैं, तो वहां पे आप सिर्फ ये सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे सिर्फ इस डी ड्राइव की फाइल की लिस्ट चाहिए, कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई है, तो आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। कोई आपको सिलेक्टेड ड्राइव है या कोई सिलेक्टेड वॉल्यूम्स है, उसमें से आपको कोई डिलीटेड फाइल्स इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो आप ये निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था, आप क्लिपबोर्ड कंटेंट भी ट्रैजिंग में निकाल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप सिस्टम इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हो।
उसके अलावा आप स्क्रीन में क्या इस टाइम पे प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे मेरे स्क्रीन में ट्रैजिन थ्रू फोरेंसिक ये स्क्रीन पे, तो उस टाइम पे क्या स्क्रीन पे था चल रहा था वो आप कैप्चर कर सकते हो। उसके साथ साथ आप ये भी डिटेक्ट कर सकते हो कि लाइक कोई अगर वॉल्यूम है या कोई ड्राइव है, कोई उस पे बिट लॉक इंक्रिप्शन लगा हुआ है या नहीं, आप ओएस फोरेंसिक का यूज कर सकते हो। उसके अलावा कि अगर कोई पीएफएक्स सर्टिफिकेट पड़ा हो सिस्टम पे, तो आप इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट्स भी वो निकाल सकते हो। उसके अलावा अगर आपका कोई मेन टारगेट है कि आपको उस प्रोग्राम फाइल्स की, लाइक अगर प्रोग्राम फाइल्स की या फिर कंप्लीटली विंडोज की या यूजर्स की ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्टरी की आपको अगर इमेजिंग करनी है, तो आप यहाँ पे लॉजिकल इमेज भी क्रिएट कर सकते हो, और इसका पीडीएफ और एचटीएमएल रिपोर्ट भी आप जनरेट कर सकते हो। तो ट्राइजिंग आप इस तरीके से ओएस के थ्रू कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है आपका मैडेट रिस्पॉन्स। तो मैडेट रिस्पॉन्स भी एक ट्राइजिंग टूल है बेसिकली। मैडेट रिस्पॉन्स अलाउज इन्वेस्टिगेटर और लाइक नॉन टेक्निकल यूजर भी है, तो दे कैन इजिली यूज दिस टूल एंड दे कैन इजिली कलेक्ट एंड प्रिजर्व क्रिटिकल डेटा विच आर रिलेवेंट टू इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लोकल एंड पॉइंट्स। लाइक कहीं आपको कोई भी ऑन एंड लॉक कंडीशन में है, एंड लाइक बहुत ही इजी टूल है। लाइक आप देखोगे यहाँ पे सीधा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन भी है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको सिलेक्ट करके आप कैप्चर करना स्टार्ट कर सकते हो। सो मैग्नेट रिस्पॉन्स इज अ फ्री एंड इजी टू यूज सॉल्यूशन टू क्विकली कलेक्ट और प्रिजर्व डेटा फ्रॉम लोकल एंड पॉइंट्स। ठीक है। बिफोर इट पोटेंशियली मॉडिफाइड और लॉस्ट, लाइक किसी तरीके से अगर मॉडिफाई हो गया, लॉस्ट हो गया, या किसी पावर पावर डिस्टर्बेंस हो गया या पावर चली गई, तो उससे पहले की इंपॉर्टेंट ये है कि हम डेटा जितना वर्टिलिटी प्रेजेंट है वो कलेक्ट कर लें। ठीक है। तो कलेक्ट एंड प्रिजर्व डेटा स्टार्टिंग विद द मोस्ट वर्टिल यूजिंग, लाइक इसमें भी आप रैम कैप्चर कर सकते हो। को में रैम कैप्चर मैग्नेट डंपिट की यूटिलिटी इस पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो मैं ये रन करके दिखाता हूँ आपको। तो देयर इज अ टूल मैग्नेट रिस्पॉन्स, आप यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, एग्री टू कंटिन्यू। ये ध्यान दीजिएगा कि ये सब कुछ आप पोर्टेबली रन करिए सिस्टम पे इंस्टॉल किए बिना। एग्री टू कंटिन्यू। और यहाँ पे आपको अपना केस इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है। आप जिस लोकेशन से इसे रन करेंगे वो उसका आप बाय डिफॉल्ट हो रहेगा, बाकी आप अलग से भी चेंज कर सकते हो उसका ब्राउज लोकेशन। ओके। तो टेस्ट आप रैम कैप्चर कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कभी लाइक अगर कोई हुआ कि इसमें क्या क्या डेटा आ रहा है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हो कि वर्टाइल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है। रनिंग प्रोसेसेस। ठीक है। सो आप रैम कैप्चर कर सकते हो, साथ ही साथ पेज फाइल डॉट सिर्फ भी कैप्चर कर सकते हो। वोलेटाइल डेटा जितने भी आप वो कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप देखो वोलेटाइल डेटा में आपका शेड्यूल टास्क, विंडोज सर्विसेज, सेविंग द डेटा टू सिंपली टेक्स्ट फाइल फॉर क्विक रिव्यू। ठीक है। तो आप वो कर सकते हो। यहाँ पे क्रिटिकल सिस्टम फाइल्स भी कलेक्ट कर सकते हो, जहां पे आपका एम कैशे डेटा हो गया, एडिडेस के लॉग्स हो गए, क्रोम ब्राउजर हिस्ट्री हो गई, एच ब्राउजर हिस्ट्री हो गई, या कोई भी आप सर्च इंजन यूज कर रहे हो उसमें कौन कौन से ब्राउजर हिस्ट्री थी इस टाइम पे, कौन कौन से लाइक यूजर ने क्या क्या सर्च कर रखा था, वो इन्फॉर्मेशन, फायरवॉल के लॉग्स, जंप लिस्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है। मस्ट एमएफटी इंफॉर्मेशन, एंटी यूजर डॉट डीएटी, यूजर स्पेसिफिक रजिस्ट्री फाइल्स, पावर शेल हिस्ट्री की पावर शेल में कौन कौन से कमांड रन हो रखे थे, प्रीफेच फाइल कौन कौन से रिसेंटली आपने कमांड प्रोग्राम फाइल एग्जीक्यूट की थी। ठीक है। प्रोग्राम्स रिलेटेड कंपैटिबिलिटी असिस्टेंट फाइल, और कौन कौन से रिसेंट लिंक फाइल शॉर्टकट फाइल एक्सेस की थी, वो इन्फॉर्मेशन, रिसाइकलिंग का इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्री हाइव, श्रम, इस तरीके से टीम वर्क लॉग, इस तरीके से आप सारा कैप्चर कर सकते हो। ठीक है। उसके साथ साथ आप कैप्चरिंग रनिंग प्रोसेसेस फाइल्स, ये आप यहाँ पे कैप्चर करोगे, एंड देन जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट कैप्चर, और ये रैप कैप्चर करने के साथ साथ आपको सारा सब कुछ कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। एंड आप ये भी नोटिस करोगे इसकी काफी काफी स्पीडली ये परफॉर्म करता है, रैम भी काफी रैप स्पीडली कलेक्ट करेगा, और सारा का सारा डेटा जो हमने यहाँ पे चेक बॉक्स में इनेबल कर रखा था वो भी डेटा ये काफी स्पीडली कलेक्ट करेगा। ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। एक सेकेंड।
कलेक्ट करने के बाद आपको एक लॉग फाइल मिल जाएगी और एक जिप फाइल में सारा इंफॉर्मेशन आपको वहीं पे ये जिप करके आपको दे देगा। ठीक है, अभी के लिए हम इसे कैंसिल करते हैं, काफी टाइम लगेगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो थोड़ा हम उसमें देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो कलेक्ट करने के बाद अगर आप चेकबॉक्स जो भी आप इनेबल करते हो, देन उसके बाद ये लाइक इस तरीके से कुछ फोल्डर डायरेक्टरीज बनाएगा लॉग्स रिलेटेड, कि लॉग कौन कौन से उठाए उसने, कलेक्शन स्टेटस का लॉग। ठीक है, उसके अलावा एक सेकेंड, अभी अनजिप नहीं करूंगा क्योंकि काफी टाइम लेगा अनजिपिंग में। ठीक है, प्रोसेसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं, टीएसवी फाइल बना रखी है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, या आप डायरेक्टली से मैग्नेट पे भी लोड कर सकते हो, मैग्नेट पे भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन या सारी की सारी फाइल्स, रजिस्ट्री फाइल्स हो गई। ठीक है, सिर्फ प्रॉपर लोकेशन के हिसाब से कि कहाँ पे किस लोकेशन से उसने उठाई, उसी के अकॉर्डिंगली ये डायरेक्टरी बनाएगा, और वहीं से आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारी की सारी फाइल इसने रजिस्ट्री फाइल्स यहाँ से कैप्चर कर रखी है। तो कुछ इस तरीके से ये कैप्चर करता है बेसिकली। देन उसके अलावा जंप लिस्ट फाइल, ब्राउजर हिस्ट्री, ये आप अब यहाँ पे देख सकते हो। तो ये प्रॉपर ऐसे डायरेक्टरी वाइज बनाएगा। ठीक है, आप ऑलरेडी इसको मैग्नेट एक्सियम या किसी भी टूल में प्रोसेस करवा के देख सकते हो। उसके अलावा वॉलेटाइल डेटा पे फाइल लॉक इन्फॉर्मेशन, यूजर अकाउंट कौन कौन से है, इसकी टेक्स्ट फाइल बनाएगा। उस पर आप यहाँ पे यूजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारा देख सकते हो। ठीक है, कौन कौन से यूजर उसमें प्रेजेंट है, वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वाईफाई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सारा वाईफाई रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, उस किस वाईफाई से कनेक्टेड थे, ये सब सब कुछ इंफॉर्मेशन। उसके अलावा विंडोज लाइक लॉग ऑन यूजर, कौन कौन से लॉग ऑन यूजर इसमें, कौन कौन सा यूजर लॉकडाउन है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं लॉग इन हो रखा हूँ ऑलरेडी, तो ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कौन कौन से नेटवर्क कनेक्शन है, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप ये इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हो मैनेज रिस्पॉन्स के थ्रू। काफी हैंडी टूल है, आप एक बार यूज करना। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं आगे। देन अब मेमोरी डेटा एक्विजिशन आप कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि उसमें ऑलरेडी टूल इंक्लूडेड थे। इन केस अगर ऐसा सिनेरियो है जहां पे आपको सिर्फ रैम कैप्चर ही करना है, देन मेमोरी कैप्चर लाइक मैग्नेट रैम कैप्चर टूल इज फ्री टू यूज, विच इज डिजाइन टू कैप्चर द रैम memory of a suspected computer. Dumpit is also a fast memory acquisition tool. आप कंपेयर करने का, डम्पिट काफी स्पीडली परफॉर्म करता है, काफी स्पीडली कैप्चर करता है, and it is designed for all 86, 64 and ARM 64 build hardware डिजाइन, ARM डिजाइन सिस्टम्स। ठीक है, तो आप उन सिस्टम्स में भी कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कि मेरे डैम्पिट कैसे यूज कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद अपने अकॉर्डिंगली आप कौन सा आपका आर्किटेक्ट बेस्ड आपका सिस्टम है, उस पे जाओगे एंड आप डम्पिट रन करोगे। ठीक है, डम्पिट रन करने के बाद एक कमांड लाइन कुछ ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे ये प्रोसीड करना है कि आपको ये रन करना है नहीं। आपको यस करोगे, स्टार्ट हो गया रैम कैप्चर होना। यहीं पे आपको रैम कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ। ये ध्यान देना है कि ये आप सारी चीजें एक्सटर्नली रन करें, डायरेक्टली सिस्टम पे कुछ भी रन नहीं करना, सस्पेक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहीं पे आप, अभी के लिए मैं बंद कर देता हूं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। उसके अलावा आप मैग्नेट रैम कैप्चर भी यूज कर सकते हो रैम कैप्चर करने के लिए। यहाँ पे आप सेगमेंटेशन साइज भी दे सकते हो कि अलग अलग कितने चंक्स में आपको वो रैम को कैप्चर करना है। यहाँ पे लोकेशन देनी है जहाँ पे आपको रैम कैप्चर करके रखना है। सेव, नेम देना है एंड सेव, और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। रैम कैप्चर आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। अब के लिए मैं कैंसिल करता हूँ। तो इस तरीके से आप रैम कैप्चर परफॉर्म कर सकते हो। गिव मी अ सेकेंड।
ओके, सो देयर इज अ फीडबैक फॉर्म ऑफ दिस वेबिनार। सो मैं अभी चैट बॉक्स पे वो फॉर्म डाल दें, ऑलरेडी डल गया है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वेबिनार से रिलेटेड प्लीज आफ्टर ये वेबिनार खत्म होने के बाद आप ये पिन यहाँ पे रखा हुआ है, आप इस पे मेरा, हाँ लाइक इस वेबिनार का फीडबैक दे दीजिएगा प्लीज। ओके, चलिए हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं वेबिनार पे, ठीक है। देन आफ्टर कैप्चरिंग द मेमोरी डेटा एक्विजिशन, लेट्स प्रोसीड विद द इंक्रिप्शन डिटेक्शन। लाइक अगर आपको कोई विंडोज सिस्टम ऑन कंडीशन में मिलता है एंड देन यू हैव टू चेक इज देयर एनी काइंड ऑफ इंक्रिप्शन इज प्रेजेंट और नॉट, देन अगर आपको अनलॉक कंडीशन में सिस्टम मिलता है तो आप प्रोसीड कर सकते हो। लाइक डेस्क मैनेजमेंट में इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, इज देयर एनी काइंड ऑफ पेट लॉकर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक ड्राइव कनेक्ट कर रखी है तो मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पे एक मेरी ड्राइव है जो बिट लॉकर इंक्रिप्टेड हो रखी है। ये इन्फॉर्मेशन आप डिस्क मैनेजमेंट से भी कलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर कोई बिट लॉक ड्राइव है तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे माउंट होकर दिखाएगा यूएसबी ड्राइव, लाइक लाइक दिस। यहाँ पे यूएसबी ड्राइव जो कनेक्टेड है ये बिट लॉक है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आप विंडोज एक्सप्लोरर से देख सकते हो। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो चेक कि इज देयर एनी काइंड ऑफ, तो आप एफटीके मेल का यूज करके भी आप ये चेक आफ्टर एनालाइजिंग लाइक द हेक्स वैल्यू, और लाइक इधर आप लाइक जो भी यहाँ पे मैजिक नंबर है यहाँ पे आप देखोगे सिग्नेचर एनालिसिस करने के बाद जैसे लाइक जो भी इंक्रिप्टेड ड्राइव्स होंगी, लाइक एफ वी ई एफ एस करके यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि दैट ड्राइव इज बिटलॉग इंक्रिप्टेड और नॉट। ओके, there's another tool like magnet encryption detection tool जिसका यूज करके आप ये चेक कर सकते हो उस पर्टिकुलर सिस्टम में कि कोई ड्राइव इंक्रिप्टेड है या नहीं, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए आप लाइक मैं रन दिस, या आफ्टर रनिंग एज मेक श्योर अगर कोई भी आप यूटिलिटी रन कर रहे हो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही रन करिएगा उस सिस्टम सस्पेक्टिव सिस्टम, प्लीज मेक श्योर ये करिएगा। Yeah, okay. After running this utility, it will check is there kind of encryption enabled on any particular drive or not. Then यहाँ पे आपको information मिल जाएगी that volume F is basically encrypted with a BitLocker. So ये information आप collect कर सकते हो using encryption detection tool. Okay. आप अगर ठीक है आपको लाइक उस टाइम पे डेस्क मैनेजमेंट पे आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे सिस्टम बिट लॉक एनक्रिप्टेड है, या जैसे कि यहाँ पे मेरे को मिल रहा है कि बिट लॉक एनक्रिप्टेड है, मेक श्योर कि आप उसका जब एफटीके इमेजर से बना रहे हो तो क्या मुझे वो पर्टिकुलर ड्राइव बिट लॉकर एनक्रिप्टेड दिखा रहे सिग्नेचर में। होता क्या है कई बार कि मैं यहाँ पे अगर सपोज कि यहाँ पे मैं यहाँ पे भी आप मिल जाएगा अनलॉक है, बट जब आप ही दिखाएंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि कंप्लीट ड्राइव इमेज, लाइक मैं देखूं एक सेकंड, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि यहाँ पे अगर आपको कोई ड्राइव ऐसे इंक्रिप्टेड मिलती है अगर आपने पासवर्ड डाल रखा है यहाँ पे तो लॉक दिखा है मुझे, ठीक है। बट अगर यहीं पे मैं एफ के रन करूँ, इन्फॉर्मेशन हर जगह मेंशन नहीं रखी है। ओके, इसको अगर फिजिकली ड्राइव को अटैच करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम अपना एफ जो है, एक सेकेंड गिव मी अ मिनट,
यहाँ पे मुझे ऐड करने के बाद भी ये मुझे ड्राइव दिखा रहा है इंक्रिप्टेड है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एफटीके इमेजर में आपको ड्राइव फिजिकली ना अटैच करके आप, लाइक अगर मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ एफ ड्राइव को, फिनिश, तो यहाँ पे मुझे ड्राइव माउंटेबल होके दिखाएगी क्या क्या डेटा है उस पे या नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ऐसा सिचुएशन मिलती है तो मेक श्योर करिएगा एफटीके इमेज में माउंट करते टाइम उसे फिजिकली माउंट ना करके आप लॉजिकली माउंट करके डेटा और उसकी इमेज फाइल आप पार्टीशन लाइक लॉजिकली पार्टीशन में क्रिएट करिएगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ये तो हो गया पूरा सिस्टम ऑन कंडीशंस का। सिस्टम, अब बात आती है डेट फॉरेंसिक एक्विजिशन। इट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग डेटा फ्रॉम पावर्ड ऑफ सिस्टम, लाइक जहां पे आपको कोई ऑफ कंडीशन में सिस्टम मिलता है। दिस इंक्लूड द इमेजिंग द स्टोरेज ड्राइव मीडिया, conducting the file system analysis, recovering deleted data, hidden data, using specialized forensic tools, and right ब्लॉकिंग हार्डवेयर्स। अगर आपको कोई ऐसा सिस्टम मिलता है जो ऑफ कंडीशंस में है, जैसे कि मैंने बताया कि हम फ्री भी यूज कर सकते हैं लाइक केन पैलेडिन, उसके अलावा देयर इज लाइक मल्टीपल कमर्शियल टूल लाइक डिजिटल कलेक्टर, ये भी यूज कर सकते हैं, रिकॉन आईडीआर ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेस्ट practices in data acquisition, it is very important to maintain the data integrity using validated forensic imaging tool, and creating forensic duplicates are critical, and which is best practice in data forensic acquisition. And you have to also maintain the proper chain of custody and documentation of the acquisition process, which are very important and very essential to your investigation. Like जिस टाइम पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। डेट फॉरेंसिक एक्विजिशन सिस्टम्स का लाइक अगर कोई ऐसा सिनेरियो मिलते हैं तो वहां पे भी आपको प्रॉपर लाइक ध्यान से करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप कौन सा टूल यूज कर रहे हो, ये बहुत ही इंटेग्रिटी मेंटेन करके ही आपको यूज करना होता है। टूल एंड टेक्निक्स या स्पेशलाइज्ड टूल आप केन पैलेडिन जैसे और भी टूल है डिजिटल करेक्टर वो आप यूज कर सकते हो। System of condition. Okay, so make sure in system of condition when you are investigating such system of condition scenario, make sure that the system is in off condition. Like some screensavers give the appearance of state, but the hard drive and the monitor indicator light may indicate that the system is in on condition. So make sure कि आपका system that the system is in off condition or not. And after like confirming these kind of scenario, you can unplug the power cable and the other devices, detach the hard disk, and record any unique identifiers like serial number, model number, such date code information, label and photo of all the components and the ports properly. Like just तरीके से आपको सिस्टम उस कंडीशन में मिला है, आपको उस पर्टिकुलर सीन का भी आपको फोटोग्राफ कलेक्ट करने हैं, क्लिक करने हैं, लेबलिंग करनी है प्रॉपर अपने एविडेंसेस की। नोट डाउन, Windows till Windows XP pulling the power plug was followed. In the later version of Windows, proper shutdown needs to be done. अगर कोई लॉक कंडीशन में मिलता है सिस्टम नीड टू बी कंप्लीटली पावर ऑफ या ऐसा सिस्टम मिलते हैं। ठीक है, देन सिस्टम ऑफ कंडीशंस को कलेक्ट करने के लिए मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज बूटेबल केन एंड पैलेडिन। यू हैव टू लाइक जो बूटेबल आपको क्रिएट करना है जिस भी टाइम में देयर इज नीड ऑफ पेन ड्राइव, यू हैव टू इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ Rufus सॉफ्टवेयर बाय व्हिच यू कैन मेक अ bootable OS where you can install your OS, ठीक है, and by which you can boot your system that external media. And when the time is short and you need to acquire the entire volumes or selected individual folders, Paladin and Keen, like if there's a not, if you don't have any commercial tool, then Paladin and Keen are your tool of choice. By default, when you are booting with that uh, bootable drive, USB port is write block when OS boot from Paladin Keen. Okay, so steps to make bootable pen drive, you have to install or Rufus, or you have to install Paladin ISO file. And after installing these requirement, you just have to open Rufus application. You have to select the pen drive from the device tab. Then you have to select your ISO file. Then you just have to select button. And after confirming this, you can just start your process by which you can make bootable pen drive. And after that, there is a prerequisites
like कुछ prerequisites है when you are investigating such system scenario, like identify the manufacturer of the suspect PC and also identify the boot menu key, which is basically called hotkey, and boot menu key are depend upon the manufacturer of this PC. Like यहाँ पे already mentioned हो रखा है, there's a multiple type of manufacturers like Acer, Toshiba, Dell, HP, Lenovo, सबके boot menu different होते हैं, BIOS की different होती है, तो make sure कि जब आप किसी system को boot करना चाह रहे हो, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आपको ये भी पहले चेक करना है कि क्या उस पर्टिकुलर सिस्टम पे सिक्योर बूट ऑप्शन डिसेबल हो रखा है या नहीं, आपको मेक श्योर करना है, बिकॉज व्हेन यू आर इन्वेस्टिगेटिंग लाइक इफ यू व्हेन यू आर बूटिंग from external media, if the secure boot option is enabled, you cannot boot from that media. So you have to just disable this option, and after disable, you can just you have to make like you have to override the boot options. You have to give the access to the uh, pen drive. Then after that, you can just boot from that bootable media. Okay, so the challenges in live forensic system boot issue while using Paladin, कि अगर सिक्योर बूट डिसेबल है या नहीं है, या फिर कई बार होता है कि आपका ड्राइव कौन से वॉल्यूम पे आपने बूटेबल क्रिएट किया है। उसके बाद चैलेंजेस आता है इंक्रिप्शन बिट लॉकर चैलेंजेस। देन आफ्टर बायो सिस्टम सेटिंग, लाइक मैंने पहले डिस्कस किया, सिक्योर बूट ऑन है तो आप किसी भी एक्सटर्नल मीडिया से बूट नहीं कर सकते। फाइल सिस्टम क्लैशेस और नॉट सेलेक्टिंग द कंपैटिबल फाइल सिस्टम व्हाइल क्रिएटिंग अ बूटेबल, जब आप बूटेबल बना रहे हो देन आपका फाइल सिस्टम क्रैशेस होते हैं। उसके अलावा सिस्टम ऑफ कंडीशन डज नॉट गिव द अपॉर्चुनिटी टू गिव टू कैप्चर रैम। उसके अलावा लाइक अभी कोई आप अगर कोई भी ऑफ कंडीशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, देन यू हैव टू मेक श्योर किस टाइम पे आपने पेन ड्राइव कनेक्ट की थी, ये प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करिएगा। एंड बूट करते टाइम पे आप बूट ओवरराइट भी करना होता है कि वो आपके ड्राइव उस पर्टिकुलरली बूटेबल से ही बूट हो, ना कि सिस्टम से बूट होता है, क्योंकि हर एक बूटेबल अगर सिस्टम से बूट होता है उसके भी लॉक्स जनरेट होते हैं, तो ये मेक श्योर करके रखिएगा। Then after preservation, in this phase, the evidence needs to be isolated, secured from unauthorized access, and preserved properly to the prevent damages caused, which can cause to the evidence. This includes the preserve from the preserving relevant electronically stored information, capturing images of the scene, documenting, maintaining proper chain of custody, protecting the disk drive from any physical damages, as well as data tampering, as well as the smart drives, etc. Thank you so much for joining this webinar. आई होप काफी आपको नॉलेजेबल चीजें इंफॉर्मेशन मिली हो। Thank you for watching the webinar. Subscribe to Third Eye Techno Solutions for more insightful webinars and content.